دل کی محل. پیچھے ہٹے. میری بات کیوں مار گئے آپ؟ شرم نہیں آ رہی آپ کو مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے؟ وہ ہزیانی چلائی تھی. آسمان ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا. اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا. اتنے بڑے ہیں آپ، کچھ تو شرم کر لیں. ایسے کیسے میرے اتنے قریب آ سکتے ہیں آپ؟ شرم نہیں آ رہی آپ کو بے شرم انسان؟ بیٹی کی عمر کیوں آپ کی؟ کچھ تو شرم کر لیتے. گھن آ رہی مجھے آپ سے. ارے میری اور اپنی عمر کا فرق ہی دیکھ لیتے. آپ اس شادی سے منع کر دیتے. اس کی باتیں اسود کا چہرہ غصے سے سرخ کر چکی تھی. وہ اس سے اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے باپ کی عمر کا ہی بنا دیتی. زندگی برباد کر دی اتنے بڑے انسان سے میری شادی کر کے. ارے بوجھ تھی کیا میں جو کسی بوجھ کی طرح مجھے شادی کر کے فارغ کر دیا؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. اسود گہرے گہرے سانس لے کر اپنے غصے پر قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا. اس کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا. میرے قریب مت آئیے گا. وہ پیچھے ہوتے جھٹکے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دے چکی تھی. اسود جو اس کی باتیں سن رہا تھا سنبھل نہ پانے کی وجہ سے وہ بیڈ پر گر گیا. دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا. وہ اس عورت پر سختی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس سے چھوٹی تھی. وہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تم پاگل ہو؟ کیا ہو گیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی اسود یار شاہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں. نہیں جانتی ہو تو بدتمیزی کر رہی ہو. تم مجھ سے جانتی ہو کتنا گناہ ملے گا تمہیں. میں سب جانتی ہوں. میرے ساتھ جو آپ سب نے زبردستی کیا نا آپ لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا کیا؟ گناہ صرف کیا ہم لڑکیوں کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کا بازو سختی سے جکڑے اس سے استسوار کرنے لگا. میں نہیں کرنا چاہتی تھی آپ سے شادی. اگر نہیں کرنا چاہتی تھی تو اپنے ماں باپ کو منع کرتی نا. مجھے کس چیز کی سزا دے رہی ہو؟ غلطی آپ کی اسودیار شاہ. بہت بڑے ہیں آپ مجھ سے عمر میں. آپ چاہتے تو آپ منع کر سکتے تھے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہاں بولے کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کا گریبان سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ چکی تھی. کچھ پوچھ رہی ہوں اسود، بہت چھوٹی ہوں آپ سے. عمر میں چھوٹا بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. شوہر کو بیوی سے بڑا ہی ہونا چاہیے. اسود کی برداشت اب ختم ہوتی جا رہی تھی. وہ اسے برداشت کر کر کے تھک چکا تھا. ایسی ایسی بات کر رہی تھی کہ اس سے غصے سے برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. جو بھی ہو تم میری بیوی ہو. مجھے میرا حق چاہیے تم سے. وہ زرمینا کو بستر پر پٹکتے اس کے اوپر آیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر جھکتا زرمینا اپنی پوری قوت لگاتے اس کو پیچھے کی جانب دھکا دے چکی تھی. اسود اس کے بازو کو سختی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنی جانب کر گیا تھا. بیوی ہو میری، حق لے کر رہا ہوں تم سے. اب دھکا مت دینا. نہیں دینا مجھے آپ کو کوئی بھی حق. وہ اس کو دھکا دیتے پیچھے ہوئی تھی. پاگل ہو گئی ہو تم. تم مجھے میرا حق نہیں دو گی تو پھر کون دے گا؟ اسود غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا. یہ عورت آخر چاہ کیا رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا. جو سن رہے وہی کہہ رہی ہوں. آپ کو آپ کا حق میں نہیں دے سکتی. اور اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بیوی کی اجازت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اگر میں آپ کو اجازت نہیں دوں گی آپ میرے قریب نہیں آ سکتے. اس کی بات سنتے اسود یار غصے سے سرخ پڑا تھا. پھر تو تم یہ جانتی ہوگی کہ پہلے دن شوہر کو حق لازمی دینا ہوتا ہے. اگر نہیں دو گی تو گناہ بھی پھر تمہیں ہی ملتا ہے. مجھے نہیں ملے گا گناہ اسود یار شاہ. مجھ سے زبردستی یہ شادی کروائی گئی ہے. میں اس شادی کو مانتی ہی نہیں ہوں. تم مانو یا نہ مانو یہ شادی ہو چکی ہے. اسود برداشت کرنے کے چکر میں بری طرح سرخ ہو چکا تھا. یہ عورت اسے اتنا غصہ دلا رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زرمینا کی گردن اپنے ہاتھ میں لے کر مڑوڑ دے. نفرت ہے مجھے آپ سے. آپ میرے شوہر نہیں ہیں. میں اس نکاح کو نہیں مانتی. اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی اسود یار غصے سے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچ چکا تھا. بہت سن لی تمہاری باتیں. اب اگر تم نے میرے خلاف ایک لفظ اور کہا میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا. بیوی ہو تم میری بیوی بن کر رہو. نہیں میں آپ کی بیوی نہیں. زرمینا نے اپنا چہرہ اس کے ہاتھ سے نکال لیا تھا. اسود کی اتنی سختی ہی اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی تھی. ڈر سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. میرے قریب آئیں گے نا آپ؟ میں مر جاؤں گی. خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں. پلیز مجھے معاف کر دیں. میرے قریب مت آئیں. وہ اس کے آگے ہاتھ چھوڑتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. اسود سرخ چہرہ لیے بستر سے اترا تھا. دوسرے ہی لمحے وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا. مگر غصہ تھا کہ کسی حال کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس نے رخ پلٹ کر زرمینا کو دیکھا جو اپنا چہرہ بازوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی.
دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ تھوڑی دیر اس کے کمرے میں رہ جاتا تو وہ اس نازک وجود کے بقیہ دیر دیتا، اس لیے وہ اب اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ پورے کمرے کو دیکھتے شرم سے سرخ رو رہی تھی، چہرہ اس کے روح کی حمانت دمک رہا تھا، کمرے کو دیکھتے اس کے گال تپ کر گلابی ہو رہے تھے۔ آنے والے لمحات کس قدر خوبصورت ہوں گے سوچ کر ہی اس کے پلکیں بری طرح لرز رہی تھی۔ شہریار کے بارے میں سوچتے وہ گلاب کی مانند کھلتی جا رہی تھی۔ وہ شخص آئے گا اس کے ساتھ کیا کیا کرے گا سوچ کر ہی اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو رہی تھی۔ اس شخص سے اسے بے تحاشا محبت تھی، اتنی کہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس شخص کو تھی یا نہیں، مگر عورت کو تو تھی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو مسلتی شہریار کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود بھی شہریار اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی گردن کو مسلتی تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نیند کی سرخی تیزی سے تیرنے لگی تھی، مگر وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ آج کی رات تو محبت کی رات تھی، بھلا وہ کیسے سو سکتی تھی؟ آج اگر اسے صبح تک بھی جا کر شہریار کا انتظار کرنا پڑتا وہ صبح تک بھی جاگتی۔ وہ گہری گہری سانس لیتے ٹیک لگا کر بستر میں بیٹھی تھی، شہریار کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کتنا پیارا لگ رہا تھا نا وہ، اس کی ایک جھلک ہی تو اس کو دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ اس کی اس جھلک نے ہی اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے شہریار کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہاں اس نے اس سے ایک بات بھی نہیں کی تھی، اور وہ تھی کہ اس سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ کب آئیں گے شہریار؟ اب تو آ جائیں، یاد آ رہی ہے آپ کی۔ آپ کی چھوٹی سی بیوی آپ کو بلا رہی ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ بھاری جولری اور وسیع لباس کی وجہ سے وہ بری طرح تھک چکی تھی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، مگر شہریار ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب وہ شہریار کا انتظار کرتے کرتے بری طرح زرد پڑ رہی تھی۔ آخر کو شہریار کہاں چلا گیا تھا؟ آخر شہریار کمرے میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر خوف و ہراس منڈلانے لگا۔ کیا وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ سوچتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں کانپنے لگی۔ نہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو شہریار مجھ سے شادی ہی نہ کرتے۔ اگر انہیں کوئی اور پسند ہوتی تو وہ سب کو منع کر دیتے، نہ مجھ سے شادی کیوں کرتے؟ یہ سب سوچتے وہ سکون کی گہرے گہرے سانس لیتی تکیے پر لیٹی تھی۔ شہریار کے بارے میں سوچتے اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر چکی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، شہریار اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ سرتاشا اس کے انتظار میں بری طرح تھک چکی تھی، آخر کو کتنا انتظار کر سکتی تھی؟ فجر کی اذان ہونے میں اب تھوڑا ہی ٹائم بچا تھا، تھک ہار کر اس کی آنکھ لگی ہی تھی۔ اب یہ سے سوئے تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ تبھی دھار سے دروازہ کھول کر شہریار شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ پڑ رہا تھا، غصے سے اس نے اپنی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ سرتاشا کو دیکھتے اس کا خون پہلے سے کہیں زیادہ کھولنے لگا، پورے کمرے کو دیکھتے اس کا چہرہ سرخی چھلکانے لگا۔ دل کر رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ اس نے دوسری سرخ سرد نگاہ سرتاشا پہ ڈالی تھی، جو مکمل دلہن کے لباس میں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے ایک چیز بھی نہیں اتاری تھی۔ یہ سب دیکھتے شہریار کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ سرخ ہوا تھا۔ اس کی زندگی برباد ہوئی تھی، وہ اس کی برباد نہیں کر دیتا، ایسا تو ہو ہی نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ٹھنڈے پانی کا جگ اٹھاتے تیز قدموں سے سرتاشا کی جانب گیا تھا۔ اس کے پاس پہنچتے وہ پورا جگ اس کے چہرے پر خالی کر گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کو اپنے اوپر گرتا پا کر وہ تڑپ کر جاگی تھی، اس کی آنکھوں میں نیند کے ڈوڑے تیر رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پانی گرنے کے بعد اس کا روح پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنا غصہ دیکھ کر سرتاشا کی آنکھیں بری طرح بھیگی تھی۔ اتنی سردی میں وہ ظالم شخص اس پر ٹھنڈا پانی ڈال چکا تھا، وہ ٹھنڈ سے بری طرح ٹھٹر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے شہریار بازو سے پکڑ کر اسے بستر سے نیچے اتار چکا تھا۔ وہ تکلیف سے سرخ پڑتے اس کی گرفت سے اپنا بازو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہریار کی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ اس کی گرفت میں سرتاشا کو اپنا بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شہریار مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد؟ مجھے بھی درد ہو رہا ہے۔ یہ جو شادی کروائی ہے نا ہمارے گھر والوں نے، مجھے بھی درد ہو رہا ہے۔ تم میری بیوی ہو، یہ سوچ سوچ کر مجھے بھی درد ہو رہا ہے۔ نفرت ہے مجھے تمہارے چہرے سے، تم سے شادی کرنا پڑ گئی۔ سوچ سکتی ہو کتنا درد ہو رہا ہوگا میرے دل میں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے سرتاشا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ نفرت ہے مجھے تمہارے اس خوبصورت چہرے سے، شدت سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نہیں کرنا چاہتا تھا تم سے شادی، یہ شادی زبردستی ہوئی ہے۔ سوچ سکتی ہو مجھے کتنا درد ہو رہا ہوگا۔ وہ اس کا بازو خطرناک حد تک دبوچتے اس سے سوال کر رہا تھا،
बाजू दबोचने की तकलीफ जाहिर हुई थी, महसूस हुई थी। इसकी नफरत की तकलीफ इतनी थी कि हर तकलीफ छोटी साबित हुई थी। इसकी नफरत पाने जरताशा का दिल टूट कर टुकड़े टुकड़े हुआ था। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने, सब बर्बाद हो गए, सब के सब बर्बाद हो गए। वो इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते इसका चेहरा अपनी जानब कर गया था। इतनी छोटी हो तुम मुझसे इनकार नहीं कर सकती थी? तुम कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी। जबान थी तुम्हारे पास, मगर तुमने नहीं किया। अब मैं तुम्हारी जिंदगी पल पल अजाब बनाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं। वो कहते एक झटके से इसे ठंडी जमीन पर धक्का दे चुका था। वो मुंह के बल इस ठंडी जमीन पर गिरी थी, ठंड से ठिठुरते। वो दूसरे ही लम्हे उठकर बैठी थी, आंखों से आंसू गिरते बेमोल हो रहे थे। इस शख्स की नफरत, इस शख्स की बातें इसे बेआवाज रुला रही थी। आह आह। वो अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े बुरी तरह चिल्लाने लगा था। जुर्ताशा इससे बुरी तरह खौफ खाते दीवार की ओट में छुप गई थी। शहरियार सुर्ख निगाहों से इसे देखता इसके पास आते इसका बाजू जकड़कर इसे खड़ा कर चुका था। अगर तुम समझ रही हो ना, तुम मुझसे बच जाओगी तो तुम्हारी गलत फहमी है ये। नफरत करता हूँ तुमसे, पल पल तुम्हें अपनी नफरत में मारूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दर्द कहते किसे है। शहरियार मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझसे इतनी नफरत मत करें, आपकी इतनी नफरत नहीं सह सकती मैं। वो फूट फूट कर रोते शहरियार का गिरबान थाम चुकी थी। शहरियार किसी अछूत की मानत इसे अपने से दूर फेंक गया था। वो कमर के बल जमीन पर गिरती फूट फूट कर रो रही थी। निहायत तकलीफ से इसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था, मगर इस जालिम इंसान को इसकी किसी भी तकलीफ से फर्क नहीं पड़ रहा था। ये औरत तड़प तड़प कर इसके सामने जान भी दे देते, इसे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। नफरत, सख्त नफरत है मुझे तुमसे। चाहूं तो अपने हाथ से तुम्हें कत्ल भी कर दूं, तब भी तुम पर रहम नहीं आएगा। इतनी बुरी लगती हो तुम मुझे। मेरे माँ बाप ने किसी बोझ की तरह तुम्हें मेरे सर पर मुसल्लत किया है, मगर तुम इस बात की फिक्र मत करो। रहम की उम्मीद तुम मुझसे जरा भी मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बीवी ही नहीं मानता। और जब तक मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानूंगा, तुम मेरे रहम से, तुम मेरे प्यार से उम्र भर महरूम रहोगी, और तुम उम्र भर ऐसी ही रहोगी। शादीशुदा होते हुए तुम्हें बेवगी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसकी बातें सुनती सरताशा बुरी तरह तड़पने लगी थी। दूसरे ही लम्हे वो भागते हुए इस तक जाते इसका गिरबान थाम गई थी। शहरियार, जबरदस्ती शादी आपकी मैंने तो नहीं करवाई ना, शादी हो गई है, प्लीज इसे कबूल कर ले। मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नाजुक जान इसकी बाहों में टूट कर बिखर रही थी, मगर शहरियार को क्या परवाह। इसे इससे सख्त नफरत थी। इस जबरदस्ती की शादी के बाद ये नाजुक वजूद भी इसे जहर से जहर ज्यादा बुरा लगने लगा था। वो इसका जबड़ा अपनी गिरफ्त में लेते खतरनाक हद तक दबोच गया था। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। अगर तुम समझती हो नागे मैं अपने घर वालों से नफरत करूंगा, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे घर वाले हैं। उन्होंने जबरदस्ती शादी मेरी तुमसे करवाई है, तो नफरत तो मुझे तुमसे ही होगी ना मेरी जान। सख्त नफरत करूंगा तुमसे, इतनी नफरत करूंगा कि तुम इसी नफरत में तड़प तड़प कर मर जाओगी। वो इसकी नफरत का इजहार सुनकर बुरी तरह जर्द हुई थी। थोड़ी देर पहले जो चेहरा गुलाब की मानद खिला हुआ था, अब वही चेहरा किसी सरसों के फूल की मानद मुरझा गया था। वो मरी मरी निगाहों से शहरियार का चेहरा देख रही थी। महबूब से नफरत का इजहार सुनना कितना मुश्किल था और कितना तकलीफ भरा अमल था, इसे अभी समझ आ गया था। शहरियार, मेरे साथ ऐसा मत करे, मेरी कोई गलती नहीं है इन सब में। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ये सब मत करे। वो फूट फूट कर रोते दोबारा से इसका गिरबान थाम गई थी। इसकी मुंह से मोहब्बत का एहसास सुनकर शहरियार का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सुर्ख हुआ था। दूसरे ही लम्हे वो इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ती इसका चेहरा अपनी जानब कर गया था। रोने धोने की वजह से इसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा निखर चुका था। नाक टमाटर की तरह गुलाबी हो चुकी थी, मगर इसकी खूबसूरती भी शहरियार को इसकी जानब मुतवज्जा नहीं कर रही थी। मोहब्बत, मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? वो इसका चेहरा नरमी से अपने हाथ में दबोचता इससे सवाल कर रहा था। हाँ शहरियार, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, नहीं बता सकती कितनी। प्लीज मेरे साथ ये सब मत करें, मैं मर जाऊंगी, आपकी नफरत में नहीं सह सकती। वो इसकी थोड़ी सी नरमी बातें टूट कर बिखरने लगी थी। शहरियार बुरी तरह हंसते इसे खुद से दूर धक्का दे गया था। वो फिर से जमीन पर गिरती फूट फूट कर रोती थी। इदराक हो रहा था कि वो शख्स इसकी मोहब्बत को भी नहीं अपनाने वाला था। तुम्हारी मोहब्बत, माय फट, नफरत करता हूँ तुमसे। समझ में नहीं आ रही, मोहब्बत तुम्हें है मुझसे, मुझे नहीं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी नफरत से जरा भी फर्क नहीं पड़ता।
तुम मुझसे नफरत करो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ। तुम मर भी जाओ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहता कमरे में टहलने लगा था। वो जमीन पर मुक्के मारते फूट फूट कर रो रही थी। इसका दिल टूट कर चिकनाचूर हो गया था। वो शख्स इससे नफरत करता था। इस शख्स की नफरत ने इस औरत को एक दिन में तोड़ कर रख दिया था। थोड़ी देर पहले जो औरत खुशी से फूले नहीं समा रही थी, इसे अभी अपने जिंदा होने पर अफसोस हो रहा था। बल्कि तुम इस कमरे में रहने का हक भी नहीं रखती। ये कमरा मेरी बीवी का होगा जो मेरे दिल पर राज करती होगी। तुम जैसी का नहीं जो जबरदस्ती मुझ पर मुसल्लत की जाएगी। वो इसके पास आती ही इसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर चुका था। सरताना से नासमझी से इसका चेहरा देखा था। दूसरी औरत का ख्याल ही इसे कई टुकड़ों में बिखेर चुका था। क्या शहरयार किसी और से मोहब्बत करता था? खुद से सवाल करते वो कितनी बार मरी थी, वो नहीं चाहती थी। शहरयार, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मेरी जान, ये कमरा सिर्फ और सिर्फ इसका होगा जो मेरे दिल पर राज करेगी। तुम जैसी का नहीं जो मेरे कदमों में पड़ी रहती रहे। वो कहते बाजू से पकड़ के इसे लिए कमरे से बाहर निकला था। सरताशा सुर्ख चेहरा लिए इसके साथ घसीटती चली आई थी। ये शख्स क्या करना चाह रहा था वो नहीं समझ पा रही थी। वो इसको बाजू से जकड़े तेज कदमों से दूसरे कमरे की जानब जा रहा था। इस अंधेरे कमरे को देखते इसकी जान निकलने लगी थी। शहरयार, खुदा का वास्ते ये मेरे साथ मत करें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मर जाओ मेरी जान, मैं तो चाहते ही यही हूँ तुम मर जाओ। उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलते इसे अंदर की जानब धक्का दे गया था। दूसरे ही लम्हे में खुद भी अंदर आते इस कमरे की लाइट चलाते इसके पास आया था। मेरे कमरे में रहने का हक मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं दूंगा। आज से तुम इस कमरे में रहोगी। वो कहता तेज कदमों से इस कमरे से निकलता चला गया था। जरताशा अपना लहंगा संभालते तेज कदमों से इसके पीछे भागी थी। वो गिरते पड़ते शहरयार के कमरे के पास पहुंच गई थी। शहरयार कमरे के अंदर दाखिल होते कमरे को लॉक कर चुका था। वो दरवाजों को बचाती बुरी तरह रोने लगी। आपको अल्लाह का वास्ता है शहरयार, दरवाजा खोल दे। किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। प्लीज मुझ पर रहम करें, मैं कमरे में कोने में पड़ी रहूंगी। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, पर प्लीज मुझे अंदर आने दे, मुझे इस कमरे में रहने दे। वो दरवाजे को बुरी तरह पीटती फूट फूट कर रो रही थी, मगर अंदर मौजूद इस शख्स का दिल नहीं पिघला पा रही थी। कोई और इसे ऐसे देखता तो इसका दिल फट जाता, मगर शहरयार इसके मामले में शायद पत्थर का था। वो आराम से अपने बिस्तर पर लेटता गहरी नींद सो चुका था। बाहर सरताशा फूट फूट कर रोती दरवाजे को बचाने में मसरूफ थी। जानती ही नहीं थी ये दरवाजा नहीं खुलना था। वो सिगरेट के गहरे कश लगाता गार्डन में खड़ा था। खुली हवा में भी इसका दम बुरी तरह घुट रहा था। इस नाजुक वजूद की बातों ने इसका दिमाग खराब कर कर रख दिया था। अगर वो अभी भी बाहर ना आता तो वो इसे रुई की तरह धनक कर रखते था। जितनी भी देर इसके साथ रहा था खुद पर कंट्रोल करता ही रहा था। अभी इसका खुद पर से कंट्रोल छूट रहा था। फजर होने को थी और वो बाहर खड़ा सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। कलेजा बुरी तरह जल रहा था। लाख मना किया था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। ये शादी बेहद बेजोड़ है, मगर इसके माँ बाप को ये बात कहाँ समझ आई थी। वो बुरी तरह चकराते इस सिगरेट को जमीन पर फेंकते अपने बूटों के नीचे मसल गया था। दूसरे ही लम्हे वो दूसरा सिगरेट जलाता इसको अपने लबों से लगा गया था। खानदान में आज 4 शादियां हुई थी और चारों ही बेजोड़ थी। ना जाने इसके भाई को भी इन सब चीजों का सामना कर रहा होगा या नहीं, वो नहीं जानता था, मगर इस वक्त इसका दिल जल रहा था। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता गार्डन में टहल लगाने लगा था। इसका दिल घबराया जा रहा था। क्या क्या नहीं कह रही थी इससे, सुनकर ही इसके दिमाग कान सुर्ख हो गए थे। दूसरे ही लम्हे वो सिगरेट को भी फेंकते ही अपने बूटों तले मसल गया था। सिगरेट को पीने से इसका दिल और बुरा हो गया था। क्या करता क्या नहीं, वो बुरी तरह बेचैन होता टहल लगाए जा रहा था। फजर की आवाज ने इसे चौंकाया था। मतलब वो 2 से 3 घंटे यहाँ खड़ा सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। सोचते हुए इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। बातें ही ऐसी की थी, कोई तो राह फरार ढूंढनी ही थी ना। फजर हो गई थी, एक एक करके अब घर में सबको जाना था। अगर कोई इसे इस वक्त बाहर देख लेता तो क्या क्या बातें ना बनाता। दूसरे ही लम्हे वो तेज कदमों से अपने कमरे की जानब कदम बढ़ा गया था। जो भी था अभी इसी कमरे में जाना इसकी मजबूरी थी। वो कमरे के अंदर दाखिल होता गहरी सांस भरकर रह गया था। बिस्तर पर वो नाजुक वजूद यूं ही आड़ा तिरछा पड़ा गहरी नींद सो रहा था। जरमीना ने एक चीज भी उतारने की जहमत नहीं की थी। वो इस होलिये में रोते रोते सो गई थी। इसका सुर्ख चेहरा देखते असफन यार शाह गहरी सांस भरकर रह गया था। वो नींद में बुरी तरह परेशान हुई थी। भारी भारी झुमके
इसे तंग कर रहे थे। दूसरे ही लम्हे वो नरमी से इसकी ज्वेलरी उतार कर साइड पर रख गया था। इसकी सफेद गर्दन देखते असवन यार शाह के हलक में कांटे चुभने लगे थे। दूसरे ही लम्हे वो तेज कदमों से अपनी जगह पर आकर लेट कर सोने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिश के बाद नींद इस पर मेहरबान हो ही गई थी। साजिदा शाह हुसैन शाह की बचपन की मंग थी। 15 साल के होते ही इन दोनों का निकाह करवा दिया गया। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। साजिदा शाह ने 19 साल के होते ही घर में ही इनकी शादी का हंगामा शुरू हो गया था। थोड़े अरसे बाद ही साजिदा शाह और हुसैन शाह की धूमधाम से शादी कर दी गई, जिसके बाद वो अपने घर को सुधारे। हुसैन शाह साजिदा शाह से बहुत मोहब्बत करते थे, जिस वजह से इनकी जिंदगी बेहद अच्छी गुजर रही थी। खुशियों के हंडलों में झूलते झूलते इनकी शादी को 2 साल गुजर गए। शादी के 2 साल बाद साजिदा शाह को खुशखबरी मौसूल हुई। उन्होंने खुशी खुशी की खबर हुसैन शाह को बताई। हुसैन शाह तो इस खुशी की खबर को सुनते दीवाने ही हो गए थे। वो तो पहले ही साजिदा शाह से इतनी मोहब्बत करते थे, इस खबर को सुनते वो पहले से कहीं ज्यादा इनसे मोहब्बत करने लगे थे। वो इनकी हर नाज नखरे उठाने लगे। इन दिनों में उन्होंने इन्हें किसी कांच की गुड़िया की तरह संभाला था। देखते ही देखते 9 माह का अरसा गुजर गया। एक रोज तकलीफों को झेलने के बाद उन्होंने एक गुल घोंटने से बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे को देखते ही इन दोनों ने इसका नाम हुनैन शाह रख दिया था। हुनैन शाह बेहद शरारती और खूबसूरत बच्चा था। वो दोनों मोहब्बत से हुनैन की परवरिश करने लगे। हुनैन शाह साजिदा शाह से पहले से कहीं ज्यादा मोहब्बत करने लगे। इनकी मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। इनकी मोहब्बत पाकर साजिदा शाह बेतहाशा खूबसूरत हो गई। हुनैन शाह के 3 साल के होते ही साजिदा शाह को एक और बार खुशखबरी मौसूल हुई। इस बार भी वो दोनों बेहद खुश थे। हुसैन शाह ने इस बार भी इनका बहुत ख्याल रखा। 9 महीने के कड़े इंतजार को करने के बाद एक सलोनी शाम साजिदा शाह ने सालार शाह को जन्म दिया। सालार शाह हूबहू इन दोनों की कॉपी था। हुनैन शाह भी अपने छोटे भाई को पाकर बेहद खुश था। हुसैन शाह और साजिदा शाह पूरी मोहब्बत और शफ़क़त से अपने दोनों बच्चों को तरबियत में मसरूफ हो गए थे। देखते ही देखते वक्त गुजरता चला गया। वो दोनों बच्चे जो इस वक्त छोटे थे, अब कड़ियल जवान बन गए थे। हुनैन शाह के 25 साल के होते ही साजिदा बेगम ने इनकी शादी का सवाल उठाया। हुनैन शाह ने खुले दिल से माँ को इजाज़त दे दी, जिसके बाद साजिदा शाह खुशी खुशी लड़कियां तलाश करने लगी। काफ़ी तलाश के बाद साजिदा शाह की निगाह करम अपनी भतीजी सबरीन शाह पर आकर टिकी। सबरीन शाह सीरत और सूरत दोनों में ही बेमिसाल थी। हुनैन शाह ने भी कोई एतराज़ ना उठाया। थोड़ी ही अरसे में दोनों की शादी तय पा गई। घर भर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। एक खूबसूरत सी शाम सबरीन शाह इनके घर में आकर आ गई थी। हुनैन और सबरीन साथ में बेहद खुश थे। कुछ अरसे में ही हुनैन शाह अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करने लगे। सबरीन शाह भी इन्हें चाहने लगी। शादी को 6 माह ही गुजरे थे कि सबरीन शाह को खुशखबरी मौसूल हुई। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई खुश था। इतने साल बाद इस घर में कोई नन्हा मेहमान आ रहा था। सभी बेतहाशा पुरजोश थे। कुछ अरसे में ही सबरीन शाह को ये बात मालूम हुई कि इनके घर में पैदा होने वाले बच्चे एक नहीं बल्कि दो हैं। उन्होंने खुशी खुशी ये बात साजिदा शाह को बताई। सब सुनते ही पुरजोश हो गए। सालार शाह भी बेहद खुश थे। 9 महीने के कड़े इंतजार के बाद बेहद दर्द सहते हुए सबरीन शाह ने 2 बेटियों को जन्म दिया। इन दोनों बच्चों को देखते हुनैन शाह और सबरीन शाह ने फूले नहीं समाये थे। दोनों ही बेहद खूबसूरत थे और इन दोनों पर ही गए थे। मिल बांटकर दोनों ने इन दोनों का नाम शहरियार शाह और असमद यार शाह रख दिया। सालार शाह दोनों से ही बेहद मोहब्बत करता था। वो दोनों ही इसकी जान थे। इन दोनों के पैदा होते ही साथ ही हुसैन शाह और साजिदा शाह ने यह बात पक्की कर दी कि अगर सालार शाह के घर बेटियां हुई तो वो बेटियां इनकी ही होंगी। यूं सालार शाह की शादी से पहले ही इनके बच्चों की मुनासबत ठहरा दी गई थी। न जाने अब आगे क्या होना था। घर भर में बच्चों की कलकलारियां फैलने लगी। वो घर जो कई सालों से सोना था, आज इस घर में नन्हे मेहमानों की आमद हो गई थी। सब बेहद खुश थे। हुनैन शाह और सालार शाह अपने दोनों बच्चों को तरबियत करने लगे। देखते ही देखते वो छोटे से बच्चे बड़े होते चले गए। हुनैन शाह और सालार शाह के 5 साल के होते ही साजिदा शाह ने सालार शाह से शादी की बात की। सालार शाह ने भी अपनी माँ को खुले दिल से इजाज़त दे दी, जिसके बाद साजिदा शाह और दोबारा से लड़कियों की तलाश में मगन हो गई। काफ़ी तलाश के बाद इनकी निगाहें करम हुसैन शाह की भांजी माही शाह पर आकर टिकी।
माहिर शाह भी हर चीज में बेमिसाल थी। सालार शाह ने भी बिना किसी एतराज के हाँ कर दी। घर भर में दोबारा से शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। शहरियार शाह और असफानियार शाह अपने चचा की शादी में बेहद खुश थे। यह खूबसूरत सी शाम माहिर शाह इनके घर ब्याह कर आ गई। सालार शाह ने खुले दिल से इनको अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया। जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से गुजरने लगी। थोड़ी ही अरसे में सालार शाह अपनी बीवी पर जान देने लगे थे। माहिर शाह भी इनसे बेतहाशा मोहब्बत करने लगी। देखते ही देखते शादी को 3 साल गुजर गए। माहिर शाह को किसी किस्म की कोई खुशखबरी मौसूल ना हुई। दोनों ने डॉक्टर के चक्कर लगाए। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि देर अल्लाह की तरफ से है। जिसके बाद माहिर शाह को नमाजें लंबी लंबी हो गई। वो दोनों हर वक्त अपनी औलाद की दुआएं मांगने लगे, मगर शायद दुआएं कबूल होने में बहुत वक्त था। शादी को 5 साल गुजर जाने के बाद भी माहिर शाह को खुशखबरी मौसूल ना हो सकी। वो अब सारे सारे दिन रोती रहती। बच्चों का बचपन से ही बहुत शौक था। शादी के इतने साल बाद भी इन्हें औलाद नसीब नहीं हुई थी। आस पास के लोग इन पर बातें बनाने लगे। घर वालों ने अलबत्ता अब तक इनसे कुछ नहीं कहा था। सालार शाह अपनी बीवी की नफसियाती हालत देखते इनसे और मोहब्बत से पेश आने लगे। वो भी यही समझते थे कि शायद अल्लाह ने इनकी जिंदगी में इनके लिए औलाद का सुकून नहीं लिखा था। माहिर शाह इनकी मोहब्बत बातें सेहतियाब होने लगी, मगर इनकी दुआएं अब पहले से कहीं ज्यादा लंबी हो चुकी थी। छोटे छोटे से असफर शाह और शहरियार शाह पूरे 10 साल के हो चुके थे। सालार शाह और माहिर शाह के लबों पर सिर्फ औलाद की दुआएं रहने लगी। देखते ही देखते और 4 साल गुजर गए। सालार शाह और माहिर शाह की शादी को पूरे 9 साल गुजर चुके थे, मगर खुशखबरी तब भी इन्हें मौसूल ना हुई थी। एक रोज खूबसूरत से शाम माहिर शाह बेहोश हो गई थी। हर कोई परेशान हुआ। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद इन्हें बेहद खूबसूरत खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। तमाम घराने में खुशी की लहर दौड़ गई। सालार शाह बेहद खुश थे। माहिर शाह तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हर कोई इनके नाज नखरे उठाने में मसरूफ था। कुछ अरसे बाद इन्हें भी यह बात मालूम हुई कि इनके घर पैदा होने वाली औलाद भी एक नहीं बल्कि 2 है। तमाम घराना बेहद खुश था। देखते ही देखते 9 माह का अरसा गुजर गया। 9 माह के बाद एक कड़ी दोपहर में माहिर शाह ने 2 खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया। इन दोनों बच्चियों को देखते सालार शाह खुशी से रो रहे थे। अल्लाह ने शादी के पूरे 10 साल बाद जाकर इन्हें औलाद दी थी। वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते करते नहीं थक रहे थे। शहरियार शाह और असफानियार शाह इन छोटी छोटी गुड़ियाओं को देखते ही बेहद खुश थे। इनके बाद इस घर में कोई बच्चा आया था। इन्हें बेतहाशा खुशी हो रही थी। सालार शाह और माहिर शाह ने मिलकर दोनों का नाम जरताशा शाह और जरमीना शाह रख दिया था। दोनों ही बेहद खूबसूरत थी। तमाम घर वाले बेहद खुश थे। असफानियार शाह और शहरियार शाह को अभी इन चारों के रिश्ते के बारे में नहीं बताया गया था। वो दोनों जरमीना शाह और सरताशा शाह से उम्र में पूरे पूरे 14 साल बड़े थे। इनकी पैदाइश में वो दोनों काफी समझदार हो चुके थे। वक्त का काम गुजरना तो वो तेजी से गुजरता चला गया। जरमीना शाह और सरताशा शाह पूरे 18 साल की हो चुकी थी। इनके 18 साल के होते ही घर भर में इनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जबकि दूसरी तरफ शहरियार शाह और असफानियार शाह भी पूरे 32 साल के हो गए थे। शहरियार शाह बड़े थे, इसलिए इनका रिश्ता सरताशा शाह से जोड़ा गया था, जबकि असफानियार शाह का रिश्ता जरमीना शाह से जोड़ा गया था। जब इन चारों को इस रिश्ते की बाबत पता चला तो जरमीना शाह तो हत्ते से ही उखड़ गई थी। इन्हें अपने से इतने बड़े शख्स से शादी नहीं करनी थी, जबकि दूसरी जानब सरताशा दिली दिल में शहरियार को पसंद भी करती थी। इसलिए इसे किसी किस्म का कोई एतराज ना हुआ। समझा बुझाकर जरमीना शाह को भी इस रिश्ते के लिए कायल कर लिया गया। दूसरी जानब जब यही बात हनायत शाह और सबरीन शाह ने अपने बेटों से की तो इन दोनों ने ही सुनते साफ इनकार कर दिया। हनायत शाह और सबरीन शाह ने इन दोनों को समझाने की बेहतरीन कोशिश कर दी, मगर वो दोनों समझ ना सके। ले देकर वो दोनों अपनी कसम देकर इन्हें मजबूर कर चुके थे, जिसके बाद वो दोनों इस शादी के लिए राजी हो गए। शादी तक पहुंचते पहुंचते असफानियार शाह तो मुकम्मल तौर पर शादी के लिए राजी हो गया था, मगर शहरियार शाह दिली दिल में सरताशा से नफरत करने लगा। इसकी वजह से इसे मजबूर करा गया था। वो शादी के बाद भी इसे कबूल नहीं करना चाहता था और आज भी इसने इसे कबूल नहीं किया था। जबकि दूसरी जानब जरमीना शाह इस जोर जबरदस्ती की शादी में नहीं बंधना चाहती थी, इसलिए वो भी इस रिश्ते को अभी तक दिल से अपना नहीं पाई थी। सालों पहले जोड़े गए रिश्ते आज जुड़ तो गए थे, अब दिल कब जुड़ना था कब नहीं ये तो वक्त ही बताता था। लेकिन तकदीर से दुआ थी कि अगर रिश्ता जोड़ा ही था तो इनका दिल भी जोड़ दिया जाए। दिल जोड़ना था या नहीं ये भी वक्त बेहतर जानता था।
सुबह की रोशनी आंखों में पड़ने के बायस सरताशा की आंख खोली। वो रात पता नहीं कब दरवाजा बजाते बजाते नींद की वादियों में उतर गई थी। इसे पता ही नहीं चला था। बैठ कर सोने की वजह से इसकी कमर तख्ता हो गई थी। ठंडे फर्श की वजह से इसे बुरी तरह जुकाम हो गया था। वो बुरी तरह रोते दोबारा से दरवाजा बजाने लगी। मगर अंदर मौजूद इस जालिम शख्स को बाहर बैठे इस वजूद की जरा भी फिक्र नहीं थी, जिसकी बिला से वो आज की आज मरती जाती है। इसे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो बुरी तरह रोते दरवाजा बजा रही थी। सबरीन शाह दरवाजे की आवाज सुनती तेज कदमों से ऊपर आई थी। सरताशा को दुल्हन के लिबास में जमीन पर पड़ा देखकर इनका दिल उछलकर हरक में आया था। वो भागते हुए इसके पास आई थी। सरताशा मेरी बच्ची, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामे इससे सवाल कर गई थी। ताई, ताई। वो इनके गले से लगती फूट फूट कर रो दी। ताई, शेरयार कहते हैं वो मुझसे नफरत करते हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी जिंदगी में इनकी कमर में सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह होगी जिनसे वो मोहब्बत करेंगे। वो मुझसे नफरत करते हैं। ताई, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी? वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं क्या करूं? मुझे बताएं प्लीज। वो इनके गले से लगते फूट फूट कर रो दी थी। मेरी बच्ची, तुम यहाँ कब से बैठी हो? अपने बेटे की करतूतों के बारे में सुन के इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। रात से वो नजरें चुराते हुए इन्हें सब सच को बता चुकी थी। यही तो चाहती थी कि वो इसे कोई इस हाल में ना देखे, मगर शहरयार की हरकतों की वजह से इसकी अपनी ही सांस इसे हाल में देख चुकी थी। वो बुरी तरह शर्मिंदा होते हथेली से अपने आंसू साफ कर रही थी। रोने की वजह से इसका चेहरा 14वीं चांद की मानद दमकने लगा था। मिटा मिटा मेकअप अब इसके चेहरे को और हसीन बना चुका था। नहीं बच्ची, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं शहरयार को समझाऊंगी। वो खड़ी होती तेज तेज दरवाजा बजाने लगी। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती वो शहरयार को धड़क कर रख दे, जिन्होंने इनकी एक दिन की बहू का यह हाल किया था। इतनी जोर जोर से दरवाजा बजाने पर शहरयार उठकर बैठ गया था। दूसरी लम्हे को जमाई लेता तेज कदमों से दरवाजे की जानब गया था। दरवाजे को खोलते इसके पैरों तले जमीन निकली थी। बाहर इसकी माँ सख्त गुस्से में खड़ी इसका चेहरा देख रही थी। जमीन पर नताशा को बैठे देखकर इसके झपड़े भेजे थे। वो सारी कहानी समझ गया था। वो दरवाजा खोलते पीछे हुआ। सबरीन शाह नताशा को उठाते कमरे के अंदर आई थी। वो अपने बालों में हाथ फेरता कमरे में टहल लगाने लगा। अपनी माँ के सामने वो इसे कुछ नहीं कह सकता था। शहरयार, ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी? सबरीन शाह इसके पास आती सख्त लहजे में बोली थी। बताओ शहरयार, ये तरबियत क्या है मैंने तुम्हारी कि तुम अपनी ही बीवी को यूं बाहर बेआसरा छोड़ दो? तुम्हारे अंदर क्या रहम नहीं है जरा भी? किस पर चले गए हो तुम? तुम्हारा बाप ऐसा नहीं है, तुम्हारा चचा ऐसा नहीं है, तुम्हारे दादा ऐसे नहीं, फिर तुम किस पर चले गए? अपनी माँ का सवाल सुनते वो बेफजूल नजरें चुरा गया था। हरकत तो वाकई जानवरों वाली ही की थी। ये तुम्हारी बीवी है शहरयार, बीवी के साथ इस किस्म के सलूक नहीं किए जाते। इस घर में आज तक तुमने किसी और को इस किस्म का सलूक करता देखा है? अपनी बीवी के साथ अपने बाप को देखा है, अपने चचा को देखा है? एक बार तो सोच लेते, इतनी सख्त सर्दी में बाहर बैठी थी, इसका क्या हाल होगा? शहरयार शाह ने टेढ़ी निगाहों से जरताशा का चेहरा देखा था। वो बुरी तरह रोती सबको देख रही थी। वो सर झटकते अपना सारा ध्यान सबरीन शाह की जानब मोड़ गया था। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ शहरयार, ये तुम्हारी बीवी है। आइंदा ये बात अगर तुमने इसके साथ ऐसा सलूक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसे मोड़ करती तेज कदमों से इस कमरे से निकल गई थी। अपनी माँ के जाने के बाद वो दरवाजा लॉक करते तीर किसी तेजी से इसकी जानब आया था। सरताशा खौफ से दूर होकर बैठ गई थी। ये क्या तमाशा लगाया तुमने? वो इसका बाजू जकड़े इससे पूछने लगा। कैसा तमाशा? वो बुरी तरह हकलाई थी। अम्मी को क्यों बताया तुमने ये सब? मैंने नहीं बताया ने, ये सब उन्होंने देखा है। तो बुरी तरह रोते अपनी सफाई पेश करने लगी। इसे रोते देखकर शहरयार इसका बाजू छोड़ते पीछे हुआ था। अम्मी को दिखाकर ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कबूल कर लूंगा। तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल की गई हो। मैं तुम्हें कभी भी बीवी वाला मकाम नहीं दूंगा। इसकी बातें सुनते सरताशा को अपना वजूद तिनके से भी ज्यादा छोटा महसूस हुआ था। तुम मेरे कमरे में तो रह सकती हो, मगर मेरे दिल में तुम कभी भी नहीं दाखिल हो सकोगी। इसलिए किसी खुशफहमी में मत रहना। सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से तुम्हें इस कमरे में बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें इस कमरे में भी रहने नहीं देता। वो सख्त लहजे में कहता वॉशरूम की जानब कदम बढ़ा गया था। पीछे सरताशा बिलक बिलक कर रो दी थी।
اس نے ایسا کیا کیا تھا جو شہریار اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ قریباً 9 بجے کے ٹائم زرمینہ کی آنکھ کھلی۔ وہ بندی بندی آنکھوں کو مسلتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ خود کو اسفندیار شاہ کے سینے کے اوپر دیکھ کر اس کا چہرہ گلاب کی مانند کھلا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اسفند بھی اس کے اٹھنے کے بعد اٹھ گیا تھا۔ موڑ پر بیٹھتے لمبی جمائی لیتا اپنی نگاہیں زرمینہ کے خوبصورت چہرے پر ٹکا گیا تھا۔ وہ اسے اچھی لگ رہی تھی، بے حد اچھی۔ رات بھر اس کی تلخ باتوں کو وہ اپنے دماغ سے نکال چکا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اتنا تو اس کا حق تھا کہنے کا۔ زبردستی ہوئی تھی، غصہ نہیں اتارتی تو پھر کیا کرتی؟ وہ نرمی سے اس کا چہرہ دیکھتے، اس کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ اس کی اس حرکت سے زرمینہ کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری دیکھ کے اپنے ہاتھوں کو کھینچ گیا تھا۔ آپ رات میں یہاں کس سے پوچھ کر سوئے تھے؟ سخت لہجے میں اس نے اسفندیار شاہ سے استفسار کیا تھا۔ اسفندیار شاہ اس کا ٹیچروں والا لہجہ سن کے مبہم سا مسکرا دیا تھا۔ کچھ پوچھا ہے آپ سے، مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولتی اسفندیار شاہ کو مزید مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے، غصہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہتا وہ اس کے چہرے پر پھونک مار گیا تھا۔ سرتاشا سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے اسفند، یہاں کیسے سوئے آپ؟ میری جان، میرا کمرہ ہے، میری جگہ ہے، یہاں نہیں سوتا تو پھر کہاں سوتا؟ کوئی نہیں، آپ یہاں نہیں سو سکتے۔ میں تو یہی سوؤں گا، وہ نرمی سے کہتے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، کل رات ہی کہا ہے نا مجھ سے دور رہا کریں۔ تم سے دور کیسے رہ سکتا ہوں میری جان، تمہارے قریب آنے کا ہی تو پرمٹ حاصل کیا ہے میں نے، اب بھلا تم سے دور رہ کر کیا کروں گا میں؟ وہ کہتا کھینچ کر اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زرمینہ سرخ چہرہ لیے اسے پیچھے ہوئی تھی۔ یہ بے شرمی میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت اچھے نہیں لگ رہے آپ، اور خبردار میرے ساتھ یہ حرکت کی تو میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہو تم؟ اب کی دفعہ اسفند کا لہجہ بھی سخت ہوا تھا۔ اپنی بیوی کے منہ سے اس قسم کی باتیں اسے کسی کوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ بولو، کیا ہو تم میری؟ شوہر نہیں ہوں پھر کون ہوں میں تمہارا؟ اس کی باتیں سنتی زرمینہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ دیکھتی وہ خود بھی ڈر گئی تھی۔ جو بھی ہو، آپ ہمارے بیچ اس رشتے کو وہ سب نہ سمجھے جو ہے، آپ اسے صرف کاغذی شادی سمجھ لیں۔ خبردار جو اسے کاغذی شادی کہا تو تم پیدا بھی نہیں ہوتی جب سے تم میرے نام پہ ہو۔ یہ فضول قسم کی باتیں کر کے میرا دماغ مت گھمانا، ورنہ میں وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے آپ؟ ابھی کچھ کر نہیں رہا تو مجھے مجبور مت کرو کچھ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر کچھ کر دیا پھر تو میرے سامنے کم از کم اس طریقے سے زبان نہیں چلا سکوں گی۔ وہ اس کے بالوں کو سختی سے جکڑتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زرمینے کا چہرہ تکلیف سے سرخ ہوا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کرنے کا حق نہیں رکھتے اسفند۔ زبردستی نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ، جب تک میں آپ کو خود اجازت نہ دوں آپ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تمہاری بھول ہے میری جان، کل رات 3 بار قبولے قبولے کہہ کر تم نے اپنی ہر چیز کا حاکم مجھے بنا دیا ہے۔ اب تمہارے اوپر تم سے زیادہ میرا حق ہے، اور مجھ پر مجھ سے زیادہ تمہارا حق ہے۔ اس لیے آئندہ اس زبان کو چلانے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ تمہاری اس قسم کی بدتمیزی اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ شوہر ہو تمہارا، تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا زرمینہ کو شرمندہ کر گیا تھا۔ اسفند کا خوبصورت چہرہ غصے کی زیادتی سے لال پڑ رہا تھا۔ خوبصورت نقوش سے لگ کر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی بے فضولی نظریں چرانے لگی تھی۔ دیکھنے میں اچھا خاصا تھا، کاش عمر میں اتنا بڑا نہ ہوتا تو اسے کبھی بھی اسفند سے شادی پر اعتراض نہ ہوتا۔ یہ عمروں کا ہی فرق تھا جو ان دونوں کے بیچ کسی ولن کی مانند آ کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ دیکھنے میں تو وہ شخص بے حد خوبصورت تھا۔ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی اسفند، مگر بس اتنا چاہوں گی کہ آپ اپنا یہ بے فضول کا حق مجھ پر نہ ہی جتائیں تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے اچھا ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی اسفند کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ خطرناک حد تک اپنی گرفت میں لیتے ہوئے مڑ گیا تھا۔ تکلیف سے زرمینہ کا چہرہ سرخی چھلکانے لگا تھا۔ تمہارے پور پور پر اب میرا حق ہے زرمینہ اسفندیار شاہ۔ وہ اس کا پورا نام لیتے زرمینہ کو خفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھکتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا وہاں اپنی مونچھیں رگڑنے لگا۔ تکلیف سے کئی آنسو زرمینہ کے آنسو نکلے تکیے پر گرے تھے۔ وہ یہ سب کر اس پر یہی بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پر اس سے زیادہ اسفند شاہ کا حق ہے۔
मेरी जान, तुम्हारे साथ सब कुछ करने का हक रखता हूँ मैं। अगर शराफत दिखा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, वरना मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा वो कम से कम तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। वो कहते एक झटके से इसको छोड़ता तेज कदमों से वॉशरूम की जानब चला गया था। शर्मिला भीगी निगाहों से इसको देखती बिस्तर पर गिरती फूट फूट कर रोती थी। ये वो कहाँ फंस गई थी? इसे लेटे लेटे अपने माँ बाप से 1000 शिकवे हुए थे। क्या था अगर इसकी बात सुनकर इसकी शादी असवद से ना करवा दे? इस नापसंदीदा शादी को चलाना इसके लिए एक बेहद मुश्किल काम था, जो इससे नहीं हो पा रहा था। वो तकरीबन पौन घंटा शावर लेकर पिंक कलर का बाथरूम गाउन पहने बाहर आई थी। इस गाउन में वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। रंगत निखर कर कुछ और शफाफ हो गई थी। भीगे भीगे नकुश देखने वाले को अपनी जानब मुतवज्जा कर रहे थे। नहाने की वजह से रंग कुछ और गुलाबी हो गया था। वो अपने बालों को एक अदा से झटकती आईने के सामने आकर जा खड़ी हुई थी। अभी वो खड़ी ही थी कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलकर असफद यार शाह कमरे के अंदर आया था। अपनी बीवी को यूं बिजली गिराते देखकर वो सुर्ख हो गया था। जो भी था वो अभी इस हाल में जरमीना को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर वो जिस हाल में थी असवद यार शाह को इस पर से नजरें हटाना नामुमकिन लगा था। दूसरी जानब जरमीना बुरी तरह सुर्ख पड़ गई थी। जो भी था वो इस होली में तो कम से कम इसके सामने नहीं आना चाहती थी। वो यही समझ रही थी कि असवद कमरे में नहीं होगा, इसलिए वो बेख्याली में बाहर आ गई थी। मगर अब बाहर आकर वो खुद पछता रही थी। गाल बुरी तरह दहकने लगे थे। असवद की नजरें इसे और सुर्ख कर रही थी। जो भी था वो इसका शौहर था, वो इसे यूं देखने से मना तो नहीं कर सकती थी। असफान खुद पर से तमाम बद हटाते कदम कदम चलता इसके पास आया था। सरमीना का दिल कानों में बजने लगा। इसके हर हर कदम पर सरमीना का दिल उछल कर हलक में आया जा रहा था। वो इसके बेहद पास पहुंचते इसकी पुश्त को अपने सीने से लगा गया था। जरमीना बुरी तरह सुर्ख पड़ते इसके हाथ अपनी कमर से हटाने लगी थी, मगर असवद यार शाह अपनी गिरफ्त पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करते जा रहा था। वो थक हार कर इसके हाथों पर मुक्का मारते अपने हाथों को आजाद छोड़ गई थी। इस होली में बाहर आई हो, अब मुझसे दूर रहने की उम्मीद कैसे कर सकती हो मेरी जान? तुम्हें इस हाल में देखकर खुद पर कंट्रोल छूट रहा है मेरा। वो गर्म लहजे में कहता इसके कान के लोगों को अपने दांतों में दबा गया था। इसकी बेबाक बात पर सरमीना शर्म से सुर्ख हुई थी। वो बुरी तरह लरसने लगी थी। मेरी जान, क्यों इतना कपकपा रही हो? तुम जैसी आतिशफिशा औरत को छूने के बाद कपकपाना तो मुझे चाहिए। कपकपा तुम रही हो, हैरत की बात है। वो मुस्कुराकर कहता इसके गाल पर अपने लब रख गया था। इसकी हरकतें जरमीना को शर्म से सुर्ख कर दिए रही थी। ये शख्स बेशर्मी में मास्टर था, इसे समझ आ गया था। दूसरे ही लम्हे में उसका हाथ अपनी कमर से झटक गई थी। आप मेरे यूं करीब नहीं आ सकते असवद यार शाह। मैंने रात ही आपको बताया है कि मैं आपको किसी किस्म का हक अपने ऊपर जताने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरी जान, मैंने तुमसे किस चीज की इजाजत मांगी? कब है? वो गंभीर लहजे में कहता इसके कानों पर अपने लब रख गया था। सरमीना कान के लो तक लाल पड़ गई थी। ना चाहते हुए भी वो शख्स इससे सुर्ख पर सुर्ख किए जा रहा था। दूसरे ही लम्हे वो बाजू से इसका रुख अपनी जानब मोड़ते इसे गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा चुका था। अब इसका रुख मुकम्मल तौर पर असवद यार शाह की जानब हो गया था। वो सुर्ख चेहरा लिया असवद यार शाह को देख रही थी, जो आंखों में ढेर सारे जज्बे भरे इसे ही देख रहा था। इसकी आंखों में अपने लिए इतने जज्बातों को देखकर सरमीना नजरें चुरा कर रह गई थी। दूसरे ही लम्हे असवद यार शाह इसका चेहरा अपने हाथों में थामे इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। इसका दिल बुरी तरह धड़का था। मेरी जान, क्यों मुझे खुद के करीब नहीं आने दे रही? प्लीज एक बार आने दो। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में पोर पोर भिगा दूंगा। तुम खुद भी मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाओगी। वो उसके कान के पास कहता इसके हाथों में अपनी उंगलियां फंसा गया था। जरमीना बुरी तरह कपकपाई थी। वो इसका कपकपाना महसूस करते मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन पर अपने लब रखता इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया था। इसके पास से आती खुशबू ने असफद यार शाह के रहे सहे औसान भी खता कर दिए थे। वो शिद्दत से इसकी गर्दन को चूमता वहां अपनी मूछें रगड़ने लगा। जमीना के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। वो इसके सीने पर हाथ रखती इसे खुद से दूर करने लगी, मगर वो एक हाथ से इसकी दोनों हाथ को अपनी जकड़ में लेते इसके गाल पर अपने लब रख गया था। बेबसी के एहसास से जरमीना की आंखों में आंसू भरे थे। वो इसे खुद से दूर नहीं छटक पा रही थी। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। ये शख्स कुछ ज्यादा ही बेशरम हो रहा था। इसकी इजाजत के बगैर वो इसके पास कैसे आ सकता था? दूसरे ही लम्हे इसने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे बेहद जोर से धक्का दिया था। असवद, जो इसके वजूद में खोया अपनी मोहब्बत की मोहरें लगाने में मसरूफ था,
अपने आप को संभाल ना पाया और सीधा जमीन पर जा गिरा। वो बेयकीनी से ज़रमीरा को देख रहा था। इसकी मोहब्बत को वो कितनी बुरी तरह झटक रही थी। वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गया था। वो औरत इसकी मोहब्बत के काबिल थी ही नहीं। दूसरे ही लम्हे वो खड़ा होता उसके पास आया था। तुम सच्ची मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो, वो कहते इसका जबड़ा बुरी तरह दबोच गया था। तुमसे जितना नरमी से पेश आ रहा हूं तुम इतना ही मेरे सर पर चढ़ती जा रही हो। दूसरे ही लम्हे वो एक झटके से इसका जबड़ा छोड़ता तेज कदमों से वहां से निकलता चला गया था। वो आईने में अपना रूप देखते बुरी तरह शर्माई थी। आईना भी गवाह था कि वो औरत बेतहाशा हसीन लग रही थी। महरून कलर की घेरदार फ्रॉक पहने इसका रूप बेतहाशा खूबसूरत लग रहा था। हल्का फुल्का मेकअप किए मुनासिब सी ज्वेलरी पहनी वो बिजलियां गिरा रही थी। शहरयार के बारे में सोचते इसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैलती चली गई थी। काश ऐ काश इसका शौहर इसकी जानब मुड़ जाए। वो दिल ही दिल में दुआ करती मुस्कुराए चलती गई थी। रात में जो सब कुछ शहरयार ने इसके साथ किया था वो सब भूल चुकी थी। इस शख्स से मोहब्बत में इतना तो वो कर ही सकती थी। अभी वो खड़ी ही थी कि तभी धार से दरवाजा खोलकर शहरयार अंदर दाखिल हुआ था। इसे देखते शहरयार के कदम अपनी जगह पर साकित हुए थे। वो लड़की परियों सा हुस्न रखती थी। शहरयार ने इस बात को माना था। इससे इस औरत से मोहब्बत ना होने पर शर्मिंदगी भी हुई थी। इस औरत में भला कहाँ कमी थी। दूसरे ही लम्हे वो अपना सर झटकते इसके पास आया था। इसका चेहरा देखते इसे माना पड़ा था हुस्न इसका बेमिसाल था। वो शहरयार को इतने पास खड़े देखकर बुरी तरह लरसने लगी। शहरयार नरमी से इसका बाजू थामे इसका चेहरा अपनी जानब कर गया था। मेरे लिए तैयार हुई हो क्या? नरम लहजे में पूछते हुए वो इसे बेहद प्यारा लगा था। वो हैरान भी हुई थी। कल से तो बस चिल्ला ही रहा था, अभी इतनी अच्छे से बात कैसे कर सकता था। वो टुकर टुकर इसकी शक्ल देखती जा रही थी। इसका इतना नरम लहजा पाते वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बोलो। वो नरमी से इसके चेहरे पर हाथ रखता अपने लहजे को और नरम कर गया था। मेरे लिए तैयार हुई हो? हाँ, आप मेरे शौहर हैं। आपके लिए तैयार नहीं होंगी तो फिर किसके लिए तैयार होंगी? इसकी बात सुनते शहरयार के लबों पर इस तरह से मुस्कुराहट आई थी। दूसरे ही लम्हे वो थोड़ा सा झुककर इसकी गर्दन पर अपने लब रख गया था। अब वो नरमी से इसकी गर्दन पर अपनी मूछें रगड़ रहा था। इसकी हरकत पर सरताशा बुरी तरह सुर्ख हो रही थी। इसकी ये हरकतें इसे शर्माने पर मजबूर कर रही थी। दूसरे ही लम्हे वो दोबारा इसकी गर्दन पर हाथ रखते इसके चेहरे पर अपनी लब रखने लगा था। इसकी थोड़ी सी कुर्बत पाते ही सरताशा बुरी तरह सुर्ख हो गई थी। कदमों में खड़ा रहना मुश्किल हुआ था। इससे पहले वो चकरा कर गिरती वो शहरयार के कंधों पर अपना हाथ रख चुकी थी। इसके पास से उठती जानलेवा खुशबू इसके अहसाबों को भारी कर रही थी। मेरी जान, मुझे मेरा हक चाहिए तुमसे। वो नरमी से इसके कान में कहता इसके कान पर अपने लब रख गया था। इसके लबों से ये बात सुनकर सरताशा मुस्कुराती थी। दोगे मुझे मेरा हक? वो नरमी से कहता इसके हाथों को अपने हाथों में थाम गया था। इसकी सुर्ख आंखों को देखते वो निगाहें झुका गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हवासों में ही रही है। हाँ शहरयार, महरम की क़ुर्बत तो एक औरत के लिए इनाम होती है। मैं भला आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ। मैं ऊपर से नीचे तक आपकी हूँ। आप जैसे चाहें वैसे मुझे छू सकते हैं। फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो भीगे लहजे में कहती इसके चेहरे पर हाथ रख गई थी। लगता ही नहीं था ये वही शहरयार है जो कल था। शहरयार उसे देखता मुस्कुराया था। मेरी जान, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं समझ रहा था तुम मुझे मना करोगी, मगर तुम तो इतनी आसानी से मान गई। मना करती मगर नाजायज बात पर करती। आपकी ख्वाहिश जायज है। मैं आपके सुकून के लिए बनाई गई हूँ। आप मुझसे ऐसी फरमाइश करेंगे मैं इनकार कर दूँ। अल्लाह मुझे बहुत गुनाह देगा शहरयार। शहरयार इसकी बातें सुनता मुस्कुराते हुए झुककर इसे अपनी बाहों में उठा गया था। फिर तैयार हो जाओ। वो नरमी से इसे बिस्तर पर लेटाता इसके ऊपर आया था। वो बुरी तरह सुर्ख पड़ते से देख रही थी। दूसरे ही लबे वो इसके ऊपर लेटते इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। अब वो शिद्दत से इसके चेहरे को अपने हाथ में थामे इसके चेहरे के हर नकूश को अपने लबों से झुलसा रहा था। वो इसके लबों के लब से बुरी तरह झुलस रही थी। दूसरे ही लबे वो खुद को और इसको हर पर्दे से आज़ाद करके पूरी शिद्दत से इसके वजूद में दाखिल हो गया था। इसके लबों से आह टूट कर खारिज हुई थी। आंखों से कई आंसू टूटे बेमोल हुए थे जिन्हें शहरयार अपने लबों से चुनते इसे अमर कर गया था। वो मुस्कुराते हुए इसका मुकम्मल हक अदा कर रही थी। वो सारी रात इस पर टूट कर बरसा रहा। तकलीफ की शिद्दत से इसका जिस्म टूट रहा था मगर इसके लबों से उफ भी नहीं निकली थी।
खूबसूरत सायतों के गुजरते ही शहरयार झटके से इससे दूर हुआ था। वो इतना कैसे बहक गया था, इसे यकीन नहीं आया था। दूसरे ही लम्हे इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। सरताशा मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। इसकी इतनी मोहब्बत बातें, वो तो इससे और मोहब्बत करने पर मजबूर हो गई थी, मगर नहीं जानती थी अभी इसे और बहुत कुछ सहना है। आइंदा मुझे इस तरीके से बहकाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत नीच हरकतें होती है जो तुमने की है। इसकी बात सुनते सरताशा दंग रह गई थी। भला इसने क्या किया था? आइंदा मेरे सामने इस किस्म की हरकतें मत करना, ना सच संवर कर मुझे अपनी जानब मुतवज्जा करना। वो कहता तेज कदमों से वॉशरूम के अंदर दाखिल होते धार से दरवाजे को बंद करता अंदर गुम हो गया था। जबकि सरताशा अब भी बेयकीन थी इसका शौहर इसके इतने पास आकर इससे दूर हो जाएगा। इसके तो वहम और गुमान में भी ये सब नहीं था। दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह रो दी थी। अपने शौहर की जुदाई वो कैसे बर्दाश्त करती। वो इसकी इतने पास आकर फिर से इससे दूर हो जाएगा, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। या अल्लाह, मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत करवा दे। या अल्लाह, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ शहरयार से। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। या अल्लाह, कुछ तो ऐसा कर कि वो शख्स मुझसे मोहब्बत करने लग जाए। वो लड़की टूट कर बिखरती अल्लाह से अपने महरम की मोहब्बत मांग रही थी। न जाने यह मोहब्बत इसे मिलनी थी या नहीं मिलनी थी, ये तो अल्लाह को ही मालूम था। अब आगे क्या होने वाला था, ये तो वक्त ही बताने वाला था। सलाम अलैकुम रीडर्स। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दें। अल्लाह हाफिज़।